minutes past. So Yes, should we ma'am. start off? Yes, ma'am. You can start, ma'am. Okay, fine. So how many participants? Oh, wow. We have about 1637 participants as of now. Okay, great. Um, all right, just give me 1 second while I share my screen. So is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Visible, ma'am. All right, just 1 second. Let me just get the chat box here. I think there it is. I need to drag it down or make it bigger. It's constantly flickering. The chat box suddenly from the last two sessions has been acting very weird. So just give me a couple of seconds. It's right up there on my monitor and I can't seem to bring it down. Let me just 1 second stop this. Our chat box is 1 second. Okay, I seem to be again having a problem with my chat box, and I have absolutely no idea why is this happening lately to me. But I think we'll just go forward with whatever we have. This is okay. That is my voice coming in hide captions. I suddenly seem to have lost my um, chat box. Okay, so let's start with today's session. Already I have delayed everybody. So my screen is visible, right? No, ma'am. Screen not visible, ma'am. Okay, sorry about that. 1 second. Ah, Yes, ma'am. yeah, Yes, ma'am. okay, Visible. fine. Okay, so what I'm going to do is this is going to be a bit of a problem for I think all of us here, that I will try my best, of course, to answer to you um, because I can't see the chat box. That's what's big, troubling me. I can see your chats up there, but it's very difficult to read. All right. So let's start with the session. How many of you agree with the thing that teaching children is an accomplishment?
But getting children excited about learning is an achievement. How many? Can you show me thumbs up? Because since I can't see the access the chat box, maybe if I see your reactions, I will understand. Okay. Yeah, I can see those thumbs up. Great. Yes. All right. So now let me show you something. आपको बताना पड़ेगा किस किस को ये याद है, ऑल राइट, या किसको इस ये 1 सेकेंड, किसी को याद आया? चलो और एक हिंट देते हैं। एक दो लोग लिख रहे हैं, और एक हिंट दे दिया, बस लास्ट वाला। How many of you have can recognize the story, have read or heard this story? How many of you have done that? Exactly, I can see the answers coming up. बहुत छोटे छोटे ऊपर है, पर still I can make out, and I'm still trying to get access to my chat box, which is, once I get it, that would be so much better. And I don't know how to uh all right. Okay, so Alibaba and 40 Thieves, right? Have you all got the answer? Alibaba and 40 Thieves. All right. अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, पर उससे पहले आई गेस इट इज मुश्किल कि आप अनम्यूट कर सके, बट आई वांटेड टू नो आप में से कितने लोग लास्ट 20 years में ये कहानी पढ़ी है या सुनी है? I'm trying to read your answers. Okay. या 20 साल से ज्यादा हो गए जो आपको ये कहानी आपने सुनी है या पढ़ी थी, और आज भी आपको याद है, ऐसे कितने लोग हैं? काफी सारे लोग, हाँ, पर आपको याद है। हाउ मेनी थीव्स वेर देयर? 40 थीव्स वो तो अच्छा, चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले पे, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? एक और आपको हिंट दे देते हैं। किस किस को याद आया? नाम आप लिख सकते हैं। कौन सी कहानी है ये? स्नो वाइट वाली कहानी, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। अब देखिए, आई थिंक सेम क्वेश्चन ये होता है कि ये आपने बहुत सालों पहले पढ़ा या सुना होगा, हो सकता है इसकी मूवी भी बनी थी इन दोनों की, आपने वो भी देखी होगी। बट द पॉइंट इज, वी रिमेम्बर। अभी भी पूछे कि इनके बारे में, इस कहानी के बारे में आपको याद होगा, राइट? अब देखते हैं, इस पे 2-3 मैं आपको सवाल करती हूँ। तो हम तो सब जानते हैं कि सेवन ड्वार्फ से, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। सब लोग सेवन ड्वार्फ जानते हैं, पता उनके नाम भी थे। दे वर डॉक, हैप्पी, ग्रम्पी, स्लीपी, डोपी, स्नीजी एंड बैशफुल। ये 7 थे वो ड्वार्फ्स के नाम। अब उनके साथ स्नो वाइट रहने लगी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, how many people were living in the house now?
आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं जितना मुझे दिख सकेगा, या ओके। आई थिंक वो 8 लिखा हुआ आ रहा है। देखती हूँ अगर मुझे चश्मा पहन के दिखे। यस, करेक्ट। So there were 8 people in the house now. Next comes the question. Next morning, half of the people went inside the forest to look for fruits and vegetables. आधे लोग जो घर में थे वो फॉरेस्ट गए टू लुक फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाउ मेनी पीपल वर लेफ्ट? आधे चले गए तो बाकी कितने लोग? व्हाट इज द नंबर दैट वर लेफ्ट? एग्जैक्टली 4 पीपल। ठीक है, अब जो लोग घर पे रह गए, द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। घर का काफी काम होता है, तो जो भी सारा काम है, दे डिवाइडेड द हाउस वर्क इक्वली अमंग्स देमसेल्फ। सारा काम उन्होंने अपने बीच इक्वली बांट लिया। तो एक एक जना कितना काम करेगा? What fraction of work did each person do? Correct, 1/4. Now, the point I'm trying to make here is, see, you can use these kind of stories. Actually, इसमें जो ये questions मैंने खुद बनाए हैं, ये काफी लंबा चलता है कि क्या खाना बनता है, कितने। It's a story based on fraction. अगर हम ये अभी, बिकॉज जगह भी कम है एंड प्लस टाइम की भी बात है, तो इसलिए मैं पूरा आपको नहीं दिखा रही हूँ कि इसमें करीब 8-10 क्वेश्चन है। बट डू यू थिंक अगर ऐसे करके हम कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बट जैसे इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन कर रहे हैं, दिस इज, वी नो दैट दिस सेशन इज फॉर प्राइमरी टीचर्स, डू यू थिंक चिल्ड्रन विल एंजॉय इट? किसी ने देखिए परसेंटेज में भी आंसर दिया है, 25%। वेरी गुड। ओके, तो आप डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन, आपको क्या लगता है बच्चे इसमें ऐसे एंजॉय करेंगे? इस टाइप के आप, जो उनका एक जाना पहचाना, ऐसे तो हमारे बहुत ये है ना। आप सोचिए, नंबर्स अगर ज्यादा हो, मान लीजिए वी टेक द महाभारत, और महाभारत पे क्योंकि उधर 100 भाई थे, तो हाउ मेनी फ्रैक्शंस और वेरियस काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी कैन डू, राइट? तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जिसमें आप, जैसे अली बाबा 43, गोल्डी लॉक्स है विद द 3 बेयर्स, मामा बेयर, पापा बेयर एंड द बेबी बेयर, और भी बहुत हमारे पंचतंत्र वगैरह के स्टोरीज है विच वी कैन यूज। ओके, so therefore, storytelling in mathematics, that's the session today. What is that? Why and how? ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। So the first thing is what? What is storytelling? Storytelling is an interactive art of using words and actions to reveal the elements and images of a story while encouraging the listener's imagination. आप सोचिए, जब आप घर पे भी कभी कहानी आप बताते हैं या आप किसी से कहानी सुनते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड्स, उसके साथ एक्शंस होता है, एक्सप्रेशन होता है, कि जिससे वो कहानी एकदम लोगों को, लिसनर को लगे कि हमारे सामने ये हो रहा है, हम इसके बीच है, वी आर पार्ट ऑफ इट। हाउ डज दैट, डू यू थिंक दैट हेल्प्स इन मैथ्स? आप अगर, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ से, इवन फॉर दैट मैटर एडल्ट्स, बच्चों को लगता है कि मैथ्स को रियल लाइफ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हैं एंड इट इज जस्ट सॉल्विंग बड़े बड़े नंबर, कैलकुलेशन, दे डोंट फील अ पार्ट ऑफ इट। बट अगर हम ये मैथ्स को, स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस, पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग करके, उनके इमेजिनेशन को यूज करके अगर हम कर सकते हैं,
Can you show me by a reaction, a thumbs up or something कि आपको लगता है ये हो सकता है बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे मैथ्स में? ओके, आई एम ग्लैड आई कैन सी अ लॉट ऑफ थम्स तो दिख ही रहे हैं, पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है मुझे. आई रियली नीड टू फिक्स दिस कि ये बात क्यों हो रहा है. वेबएक्स के साथ ही ये हो रहा है मेरे साथ. ऑल राइट. सो हाउ, ये तो कि आई वंडर व्हाई, आई वंडर हाउ. तो पहली हम बात करेंगे व्हाई पे. हाउ पे बात पे आते हैं कि ये करना क्यों अच्छा पे है. ऑल राइट, व्हाई स्टोरीज. How many of you agree with this that storytelling is a traditional method of education? क्या आप इससे सहमत हैं? Do you agree with this? आप सोचिए, हमने जो अभी जो पंचतंत्र के कहानियां के बारे में मैंने बोला, आप लोगों को मालूम होगा. हम जब छोटे थे, ईसॉप फेबल्स के बारे में, उनके कहानियों के नीचे एक वो होता था, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी. उससे हम कुछ सीखते थे. इवन हमारे आप सारे देखिए जो वेरियस काइंड ऑफ जो पुराण कथा है, या जो हमारे पुराने ये सारे, आप ये जो अली बाबा 40 चोर की कहानी बताई, ये तो आज की नहीं है. इट्स hundreds of years old, this story. All these stories have been, most of them, like even our traditional Puran Katha and all these, have been what? Mostly verbal. Writing came much later. एडुकेशन, ये आपने पिक्चर्स भी देखे होंगे कि गुरु या कोई ऊपर बैठे रहे, कहानी के उसमें वो शिक्षा दे रहे हैं शिष्य को. सो स्टोरी टेलिंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एडुकेशन. And why? Why? Because stories appeal to our senses and our emotions. Not only drawing attention easily, वो तो है ही, but impact होता है उनका. आप जैसे देखिए, जैसे ही मैंने आपको दो पिक्चर अली बाबा के या स्नो वाइट के, आपको याद आ गया. पर अगर मैं आपके क्लास 2 के टेक्स्ट बुक से कुछ पूछूं कि क्या ये वाली चैप्टर तुम्हें याद है, ये वाला चीज याद है, हो सकता है आपको नहीं याद हो. पर ये कहानी हो सकता है कि आपके दादा दादी किसी ने सुनाया था, पर फिर भी आपको याद है. Because it draws, and our emotions are impacted in this. So this makes storytelling powerful in delivering any message. If you deliver a story right, correctly होना चाहिए कि उसमें एक्सप्रेशन होगा, उसमें तो बच्चे क्योंकि आपको देख रहे हैं. अगर मोनोटोनस वॉइस हो, उसमें कोई जान ना हो, फिर किसी को भी मजा नहीं आता. So, as evident throughout history, and why history, we can see it personally that it might last a lifetime. कैसे कैसे ये होता है? Storytelling encourages children using math in their daily adventures as they play, build, and discover the world around them. Stories make it easy for children to explore everyday math. Do you agree with this? अगर हम स्टोरी के तौर से, विच आई विल शो यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ये कैसे बनाया है, जैसे स्नो वाइट का मैं दिखा रही थी, that it makes it easy for children to explore everyday basic math. Okay, we are talking about primary classes, we are talking about foundational numeracy. हम इधर कोई कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking the foundational 4 basic pillars, the arithmetic operations. ये तो हम स्टोरी के माध्यम से जरूर कर सकते हैं. Stories help children in developing various skills like what? Reasoning, communication, very important. आप NEP के साथ 2020 में आपने देखा होगा, collaborative learning, communication, problem solving, ये सारे they are part of our NCF now, NEP 2020. Analogical, visualization, logical mathematical skill, ये सारे stories के तौर पे बताए, बच्चों को ज्यादा समझने में आसानी होती है.
और स्टोरी टेलिंग को आप और भी चीज से कंबाइन कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, आर्ट फॉर्म्स लाइक ड्रामा, म्यूजिक, डांस, कॉम, बहुत कुछ। ये तो एज टीचर्स आपके क्रिएटिविटी में है कि आप हो सकते हैं स्टोरी सिर्फ कहानी पढ़ के सुनाए, उसमें क्वेश्चन करके कर सकते हैं, या उसमें और भी कुछ ला सकते हैं कि बच्चों भी उसमें पार्टिसिपेट करे। कुछ ड्रामा के तौर पे आपने क्लास में कुछ बच्चे, जैसे 4-5 बच्चे ले लिए, ओके, या 8 बच्चे ले लिए, एक बच्चा स्नो वाइट है, 7 बच्चे ड्वार्फ्स बन गए, 2 इधर चले गए, 4 इधर चले गए। व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी इंटरेस्टिंग? आपको क्या लगता है? एक्टिविटी के तौर में अगर करें, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप हर दिन ऐसा करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, बट can it be done sometimes at activities and things? Will it create interest in children? I can see Aisha ma'am is saying yes. Okay. अभी आई थिंक चश्मा पकड़ के मुझे थोड़ा बहुत दिखने लगा है. All right. So this is why storytelling is so very important. अभी देखिए, I will now go to a story. All right. देखते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप ना ये वाला स्टोरी एक स्क्रीन ग्रैब या कुछ ले लीजिए, ओके, बिकॉज बाद में मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगी, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट, दो यू कैन रीड इट, मैं फिर भी वुड। सो द विंटर वाज कमिंग, तो जो एंट है आप जानते हैं विंटर के टाइम, सो यू कैन ऑल्सो एड योर ओन थिंग, एंड प्लीज, एंट एंड द ग्रास हॉपर स्टोरी इज अगेन अ वेरी ओल्ड स्टोरी। ये जो नंबर आप देख रही हैं ये मैंने डाले हैं, ओके। तो आप इसी में कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, जो आपको करवाना है वैसे कर सकते हैं। आप ये 6 डेज के जगह 4 डेज कर सकते हैं। ये मैंने जो आप मैथमेटिकल पार्ट डालते हैं, कहानी मैंने उठाया और उसमें मैथ्स मैंने डाला है। तो इसलिए आपको कहीं भी कुछ चेंज करना है, कुछ भी प्रॉपर्टी डालना है कि अच्छा ये तो मल्टीप्लिकेशन का है, मुझे और कोई, मेरे बच्चे एडिशन जानते हैं तो मुझे एडिशन से करना है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो कहानी पे चलते हैं। सो द एंड स्टार्ट्स टू प्रिपेयर, क्योंकि सर्दी आ जाएगी, कहाँ मिलेगा खाना। सो 6 डेज अ वीक, हफ्ते में 6 दिन वो जमा करने लगा। क्या? छोटे छोटे सीड, क्या 10 सीड वो हर दिन जमा करता था, संडे को एंड रेस्ट लेता था। सो एट द एंड ऑफ अ वीक वहीं एक ग्रास हॉपर भी रहता था। उसने बोला सिली एंट। अब देखिए, हमारे इंडिया में ही सोचे तो अराउंड दिसंबर आने लगती है सर्दियां। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड, यू नो, द व्हाट शुड आई से, नॉट द माउंटेन्स, ओके। कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट वगैरह उधर तो पहले अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो, द प्लेन्स में अराउंड दिसंबर सर्दी आती है। तो इसने तो शुरू कर दिया अराउंड अक्टूबर, और अक्टूबर में आप सोचिए कितना प्लेजेंट होता है। वैसे दिल्ली में आजकल थोड़ी गर्मी है, बट फिर भी ओके, इट्स मच बेटर देन अदर थिंग्स। तो कहाँ थोड़ा मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चाट खाएंगे? नहीं, ये काम कर रहा है। You work all day, said the grasshopper, when you could be having fun. And the grasshopper laughed and pointed at the ant. Second week में जाके the ant worked harder. 10 लेता था, अब वो 12 सीड एवरी डे जमा करने लगा। एट द एंड ऑफ द वीक ग्रासहॉपर से मिला, उससे बोला, उसने हंसा और कहा सिली एंट। थर्ड वीक जाके 15 इकट्ठे करने लगा, क्योंकि सर्दियां आ रही थी तो उसको चाहिए था, जमा करना था जल्दी जल्दी। ग्रास हॉपर को तो कोई होश नहीं। फोर्थ वीक ग्रास नाउ द एंट वाज वर्किंग ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप, सारा दिन लगा हुआ इधर से उधर। आप सोचिए एक चींटी एक सीट को लेके उसको कितना टाइम लगता होगा, पर फिर भी दिन में 18 सीड्स वो जमा कर रही थी। फिर आ गया विंटर। द ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट। It went to the ant's hill and asked
if the ant had any extra seeds for it to eat. And do you know what the ant said? आपको क्या लगता है? Did the ant say silly grasshopper? या कुछ और बोला? ओके, तो ये आप एक क्वेश्चन वैल्यू स्किल, बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं एंट अच्छा था, उसने ऐसा नहीं बोला, कुछ बोलेंगे अब एंट हंसा और बोला सिली ग्रास हॉपर। बहुत सारे आपके बच्चों के कम्युनिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, तो आप इस पे ध्यान देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, so how many seeds did the ant save in the first week? 10? कितने दिन थे? In the first, exactly 60. 60 is the correct answer. Yes, 6 दिन उसने काम किया, हर दिन उसने 10-10 इकट्ठे किए। 60 is the correct answer. Very good. Next वाला, how many seeds ant ने second week में किए? आने लग गया आंसर 72। वेरी गुड। फिर थर्ड वीक में कितना हुआ? 90 हो गया। 15 थे, सो 15 इंटू 6 90। तो फिर टोटल कितने किए? अभी लास्ट वीक फोर्थ वीक भी तो है, तो टोटल कितने एंड्स ने इकट्ठे किए? इज इट 970? आप सोच के बताओ। ऑल राइट, so first week it was 60. The second week it was 90. Sorry, the first week it was 60, फिर 72, फिर 90. Last week it was 108. So total 330 seats ant ने जमा किए थे. Correct? Yes, I can see that there are 330 is correct. Okay. अब देखिए, विंटर लास्ट्स फॉर 90 डेज। अच्छा, पहली बात बताइए, क्या हमने 6 का टेबल सीखा? उसका रिवीजन हुआ? 6 के टेबल का? 6 इंटू 6, 6 into 9, 6 into 12, 6 into 18. All right, so multiplication कर रहे हैं हम। ओके, और ये नंबर्स मैंने जैसे आपको कहा, आप चेंज कर सकते हैं। आप वीक में कम मतलब ज्यादा छुट्टी देके इंस्टेड ऑफ 6 4 का टेबल कर सकते हैं। आप और भी वीक्स बढ़ा दे तो बाकी नंबर्स आ जाएंगे। ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, विंटर लास्ट फॉर 90 days and the ant eats 3 seeds every day. Does the ant have enough food for winter? अब 90 डेज है और हर रोज 3 सीड्स खाती है एंट, तो उसको कितने सीड्स चाहिए? 270. So therefore, does the ant have enough seeds? Yes. Do you think that the ant should give grasshopper any seeds? क्या एंट को शेयर करना चाहिए? ओके, आई एम गेटिंग मिक्स्ड आंसर, और यही बात क्लास में होगी। कुछ लोग बच्चे बोलेंगे यस, कुछ बोलेंगे नो, एंड यू कैन हैव अ डिस्कशन व्हाई यस व्हाई नो, व्हाट इज द थिंग। ठीक है, अगर एंड शेयर करती है तो वो कितने दे सकती है ग्रास हॉपर को?
60। वेरी करेक्ट। सो आप भी अपने आंसर्स देख लीजिए। ये है आपके आंसर कि फर्स्ट वीक में 60, 72, फोर्थ वीक में वो मैंने पूछा नहीं था 108, फिफ्थ तो टोटल 330। यस इट हैज इनफ 270 एंड द एंड कैन स्पेयर 60। अच्छा पहले बताइए आपको स्टोरी कैसा लगा? Did you enjoy the story? Do you think children will enjoy the story? Yeah. और इसको जैसे मैंने 6 में ऐसे किया था, क्या आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बना सकते हैं? विंटर को 3 महीने के जगह आपने 2 महीने कर दिए, एंड ने एक 4 हफ्ते के जगह 8 हफ्ता इकट्ठा किया, ऐसे क्या हम कर सकते हैं? है ना? सो डू यू थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह सिखा रहे, इनिशियली शुरुआत कर रहे हैं, तो बच्चे ऐसा करना पसंद करेंगे? ओके। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऊपर क्या देख रही हूँ, ऊपर मॉनिटर में मैं आप लोगों के आंसर्स देख रही हूँ, मुझे सर ऊंचा करके देखना पड़ रहा है। ऑल राइट। सो नाउ वी कम टू व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस, जो स्टोरी टेलिंग। क्योंकि ये जो स्टोरी टेलिंग ये सारा है, दिस इज समथिंग आई थिंक जहां भी मैं जाती हूँ, इवन आप लोगों के इधर भी पटना सहोदया के लिए मैंने जो भी वर्कशॉप्स की हैं, ये क्वेश्चन मैं हर बार पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री वेदर वॉट एवर क्लास यू आर टीचिंग, especially I would say probably class 3 onwards and going up to 12th, even sometimes in college. If you ask students a direct question, add this, solve a pair of linear equations, solve quadratic equations, subtract, divide this by this, आपने लिख दिया direct question, वो बच्चा, average बच्चा फिर भी कर देगा. But the moment you give the same question as a word problem, बच्चे कर नहीं पाते, comprehension नहीं होता है. क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? फिर आप देखिए व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखो ये जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ये तो एक अपने आप में छोटे छोटे स्टोरीज ही होते हैं ना, बस मतलब 2 या 3 लाइन का स्टोरी। तो अगर हम स्टोरी से डेवलप करें फाउंडेशनल ये में, तो वो उसमें भी उसको कॉम्प्रिहेंड करना सीखेंगे। इनफैक्ट इट बिकम्स इजियर बिकॉज वो तो बहुत छोटी छोटी स्टोरी है। अब आप देखिए, टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम व्हाट डज अ स्टूडेंट नीड टू डू? द स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू सॉल्व इट। जो आपने एंटन ग्रॉस हॉपर कि आपने इमेजिन किया, अच्छा कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो दाने इकट्ठे कर रही है चींटी, तो मुझे निकालना है कि 6 दिन में कितने दाने वो इकट्ठा कर सकती है अगर 10-10 एक दिन का करे। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? द स्ट्रैटेजी वाज मल्टीप्लिकेशन। फिर आपने एक एक करके 4 हफ्तों का लिख लिया। अब मैंने पूछा कि तो फिर कितना इकट्ठा किया, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, क्या करना है? अच्छा हम चारों हफ्ते का ऐड कर देंगे, तो दैट वाज योर एडिशन। अब एडिशन के बाद जब ये हो गया, आप उसको 3 दिन में खाती है, इफ शी इज हैविंग 3 a day, देन उसके पास इनफ है। आपने क्या किया? आपने डिविजन किया। ऑलराइट, या आप बोल सकते हैं 90 into 3 मल्टीप्लाई कर किया। So how many extra which she can give to the grasshopper? She can give 60. So the student will कैसे किया? What all was involved? Logic reasoning was involved. Comprehension was involved. Communication was involved. See, communication is not सिर्फ मुंह से बोलना. Communication can be through writing. Communication can be through reading. Communication can be through drawing. It is basically making the other person or persons understand what is it that you are trying to say.
अगर वो ये पढ़ के बुक ने उसे कुछ स्टोरी ने कुछ कम्युनिकेट किया और उसके हिसाब से बच्चा कर पाया, that is what you require. So we help build these skills and understand how to use them in specific situations. Okay? So अब देखिए, अब मैं आती हूँ जो हमारे सिंपल जैसे छोटे ये है, ऐसे क्वेश्चन आई एम श्योर आप करते हैं। नॉर्मली क्या है, रॉनी सीज 30 grapes in the fruit bowl, he eats 14 grapes, how many are left? डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। अब कुछ बच्चे हैं आपको मिलेंगे ये कर नहीं पाते। ओके, अब हम इसको स्टोरी या क्वेश्चन के तौर पे हम पूछ सकते हैं, ग्रेप्स में बोल में कितने ग्रेप्स थे? द चाइल्ड राइट्स डाउन। ओके, और मुंह से आंसर ओरल, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू assessment of children, primary children, especially in classes 1 and 2, is oral. ये नहीं कि बच्चा कर नहीं सकता है, बच्चा कर सकता है, बट उनको लिखने में टाइम लगता है। ऑलराइट, सो देयरफॉर हो सकता है बच्चा आपको लिख के जो नहीं कर पा रहा है या टाइम लग रहा है, आपको जवाबी मुंह से आंसर जल्दी दे दे, वर्बल आंसर। So number of grapes, 14 grapes. That means what? The child has comprehended and communicated to you the correct answer. अगर गलत भी बोलता कि सॉरी 30 ग्रेप्स है, ऑलराइट, अगर मान लीजिए 14 होता, इमीडिएट आपको बच्चे ने कम्युनिकेट किया पर कम्युनिकेट गलत किया, क्योंकि उसने 2 नंबर देखे, उसने नंबर तो पहचान लिया 30 और 14, पर कौन सा खाया और कौन सा रह गया और बोल में शुरू से कितना था, ये बच्चा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। All right. So therefore, the moment the child says कि 30 थे, that means the child has understood. रॉनी ने कितने खाए? 14 रॉनी ने खाए। अब हमें करना क्या है? कहानी तो समझ आ गई, ग्रेप्स थे, ग्रेप्स कितने ग्रेप्स थे? 30 ग्रेप्स थे, रॉनी 14 खा गया। हमें क्या करना है? लॉट ऑफ चिल्ड्रन डोंट नो करना क्या है। हमें निकालना है कि कितने रह गए हैं। अब उसकी एक बहन, आप एज अ टीचर जोड़ दो कहानी में, उसकी बहन भी है, वो भी तो आके कुछ खाएगी ना, उसके लिए कुछ बचा है, कितने बचे हैं? ओके, अब हाँ, तो ये निकालना है कितने बचे हैं, कैसे निकालेंगे? नाउ कम्स स्ट्रैटेजी। देखिए, हमने कम्युनिकेशन किया, हमने कॉम्प्रिहेंशन किया, हमने कम्युनिकेशन किया, अब आ रहे हैं स्ट्रैटेजी पे कि हम कैसे निकालेंगे, क्या ऑपरेशन यूज करेंगे कि हमें पता चल जाए। तो व्हाट इज दैट आंसर? दैट आंसर इज सब्ट्रैक्शन। अब आप बच्चों से बोलो, आप करो। सो 30 माइनस 14, आपका आंसर बन गया 60। सो क्या ये भी अपने आप में एक छोटा सा स्टोरी नहीं था? सो इन दैट केस, डू यू फील दैट हमारे जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, या तो मान लीजिए, कैन यू प्रिपेयर अ वर्कशीट? ओके, जैसे आपके जो टेक्स्ट बुक में जो भी आप पढ़ा रहे, उसमें से आप मान लीजिए आपके 10 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 4 या 5 जो कठिन वाले हैं या मिड टू कठिन वाले, उसमें आपने ऐसे करके दे दिए, सो द चाइल्ड क्या थिंकिंग हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये बच्चा भर के लाएगा या करके लाएगा, और या क्लास में करेगा। अब आप होमवर्क दीजिए, जो बाकी 5 बच गए हैं आपके एक्सरसाइज में, वो घर में बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, ये लिख के लाएगा। क्वेश्चन, ये देखिए जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर नहीं भरे हैं। आंसर ये आपने बनाए, क्लास में बच्चों ने डिस्कस किया, सॉल्व कर लिया, ठीक है, बात इधर खत्म हो गई। पर बच्चों ने देखा कि कैसे आपने क्वेश्चन बनाया। अब आपका होमवर्क है कि बाकी जो 5 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जैसा भी आप लोग देते हो, उसमें आपको बेटा सॉल्व नहीं करना है, आपको लिख के लाना है। इंफॉर्मेशन क्या है, क्या हमें करना है,
हम कैसे करेंगे? ये प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आप लिख के लाओगे। उसके बाद जब वो ले आते हैं, या तो आप क्लास में सॉल्व या एक दूसरे की आप कॉपी एक्सचेंज करवा दीजिए। आप देखिए उधर ही वो एक दूसरे, अगर कोई बच्चा गलत भी सारा इंफॉर्मेशन नहीं लिखता, दूसरा बच्चा आपको बोल देगा कि ये तो इधर नहीं है। पॉसिबल? डू यू थिंक इट कैन बी डन? बिकॉज यू सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगे कि ये किया जा सकता है, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका 1 घंटा मैं ऐसे ही खा रही हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ, ये आप कभी कभी कर सकते हैं, बच्चों से ऐसे कर सकते हैं, तो ही इस ये जो हमारा वर्कशॉप हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, इसका सक्सेस है। All right. So that is why you have to see. I can see a nice, cute, smiley out there laughing away. Thank you for that. Yeah, it becomes a waste of time. So, similar question I have here. Same thing. तो जैसे एक आपने करवा दिया, अगले वाले में आपने क्वेश्चन दे दिया। ऑलराइट, सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया। पिक्चर तो मैंने ऐसे ही डाली थी, बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चे का होमवर्क क्या है? बच्चे का होमवर्क है ये लिख के लाएगा, इसको भरना नहीं है, भरेंगे क्लास में। सिर्फ इनको ये लिख के लाना है, नो सोल्यूशन रिक्वायर्ड। पर अगर बच्चा करेक्टली ये क्वेश्चन लिख सकता है, can we say the child has comprehended the question and the child has been able to communicate कि क्या करना है? Will you agree there कि इतना अगर बच्चा लिख ले? ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। सो ये आज इसमें आप देखना, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गलत हो सकता है। ये मैंने आज सुबह बैठ के जल्दबाजी में मैंने आई थिंक 15-20 मिनट में ये क्वेश्चन बनाया। एक कहीं से एक प्राइस लिस्ट उठाया था, बाकी जो क्वेश्चन बना है तो वो आपको, इसलिए इसमें आंसर भी नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने सही किया है या नहीं। मैंने क्या क्वेश्चंस है, तो पहला क्या बात क्या है, स्नेहा मार्केट गई वेजिटेबल खरीदने, उसके पास 50 रुपए थे। वैसे मैं जानती नहीं किस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, आजकल 50 रुपए में तो आई थिंक गोलगप्पे भी नहीं मिलते। स्नेहा चली गई सब्जी खरीदने। चलो कोई नहीं, अब क्या करें, जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है काम। She planned to make vegetable soup. For that, she needs half kg tomato, 250 grams onion, 250 gram potatoes and half kg of carrots. ठीक है? How much does she have to pay? Price list लिखा हुआ है। आपको मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया। ओके, एक सर ने लिखा है 52, इज दैट करेक्ट? हाँ, निवेदिता मैम इज ऑल्सो राइटिंग 52 ऑल राइट। चलो, थैंक यू पीपल। अब मुझे आंसर मैं भी कहीं नोट कर लेती हूँ कि मैं बाद में ये आंसर डाल दूंगी। ऑल राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है 52। ओहो, फिर तो मेरा आगे क्वेश्चन बड़ा ही नहीं। अच्छा, 52 कैसे हुआ हम देखते हैं करके। आधा किलो टमाटर, तो ये हो गया 6 रुपए, और 250 ग्राम अनियन, ये 52 है या 32 है? मुझे दिख नहीं रहा है ये। 52 तो हो नहीं सकता, इतना गलत तो मैं नहीं कर सकती। मैं एक बार हिसाब लगा के देखती हूँ। यही मुश्किल हो रहा है चैट बॉक्स में। हाफ के जी टोमेटो इज 6 रुपए, एंड 250 ग्राम अनियन होगा 4 रुपए, बन गया 10 रुपए। 250 ग्राम पोटेटोज 250, ये बन गया 1250, एंड हाफ के जी कैरेट 9 रुपए।
2150 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो किस किस के 2150 आए, या मैंने ये मैम का आया है? हाँ, और भी 2-3 लोगों के। हाँ, मैंने गलत नहीं किया। ये 52 मुझे क्यों, हाँ 2150 इज द करेक्ट आंसर। चलो, सो दिस इज, ये 52 मैं काट देती हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ऑल राइट, तो हाउ मच डज शी हैव टू पे? शी हैज टू पे ₹2150. Then she notices the gourd. What is gourd? बच्चे पूछेंगे तो मैंने लिखा। And she plans to make लौकी की सब्जी. So she buys half kg gourd. ओके, आधा केजी लौकी खरीदती है। बट लौकी के सब्जी में देखिए, आपको खाना भी ये बनाना बता रहे हैं, और अगर मैं गलत बता रही हूँ तो मुझे बताना। बट लौकी के सब्जी में भी उसको टमाटर चाहिए। बनता होगा आपके घर में भी लौकी टमाटर की सब्जी। तो उसने फिर 250 ग्राम टमाटर और लिए, सॉरी आधा किलो टमाटर और लिए। क्या लिए उसने? पहले उसने ये सामान लिया जिसका 21 रुपए 50 पैसे भाव था। उसके बाद उसने आधा किलो लौकी लिया और आधा किलो और टमाटर लिए। तो टोटल उसने टमाटर कितना खरीदा? पहला क्वेश्चन तो ये है। 1 केजी, करेक्ट। पहले आधा किलो लिया था, अभी आधा किलो लिया, 1 किलो उसने टमाटर खरीदा। एंड व्हाट इज हर टोटल एक्सपेंस? तो 2150 पहले से था, 2150 पहले से था, और उस पे 6 रुपए और कितना, 4 रुपए, 10 रुपए। इट इज 3150। एम आई करेक्ट? यस, 3150 करेक्ट। ऑल राइट, अब इतना कुछ करके, बाय नाउ स्नेहा was tired and thirsty. She wants to buy a glass of apple juice for herself. It costs ₹15. 15 रुपए का एक ग्लास है। Does she have enough money to buy it? Yes. तो उसने पी लिया जूस। अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं? ₹3150 था, 15 रुपए और, सो दैट इज हो गया 3650। 3.5 रुपए अभी उसके पास बचे हुए हैं। आप बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करते हैं ना क्लास में? अगर हम इसको ऐसे करें जहां हर बच्चा डिस्कस करके, ये नहीं कि इसके पास वो गई, ये खरीदा, खत्म कहानी। अब देखिए, ये करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक्चुअली मैं बताती हूँ हाउ डिड आई स्टार्ट। मुझे नेट में एक ये मिला, और ये होगा किसी, आई थिंक यू नो, प्री हिस्टोरिक जमाने का। वो तो आपको भाव देख के ही पता चल रहा है, आजकल इसी भाव में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ये उठाया और उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया। ऑलराइट, और उसके लिए मुझे 15-20 मिनट लगे। तो ये नहीं, एंड लेट मी टेल यू, आई एम not a person who's done her graduation in languages or anything. Maths is my subject. The thing is, ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, और ये तो हर रोज की बात भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कभी लगे एंड वी आर डूइंग दिस स्मॉल वंस, आप इसको कम कर दीजिए या और इंटरेस्टिंग कुछ बना दीजिए। ऐसा वाला ही आप ले लीजिए, इसका फ्रूट्स का कर देना भाव थोड़ा कॉन्टेम्पररी वाला, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि बच्चे के पेरेंट्स आ जाएंगे आपके पास कि टमाटर कहाँ मिल रहे हैं 12 रुपए में, हमें भी बता दीजिए। तो इसीलिए आप ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एंड डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन विल एंजॉय इट? उनका थोड़ा सा मैथ्स को इंटरेस्टिंग लगेगा, डर कम होगा, करने में वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। वाई? बिकॉज ये सारी चीजें वो अपने आसपास देखते हैं।
स्पेशली आप अगर शॉपिंग वाले चीजें देते हैं ना, थिंग्स लाइक ये तो मैंने वेजिटेबल दिया था, वेजिटेबल से भी ज्यादा है आप ऐसे चीजें दे दिए, ब्रेड, मिल्क, बिस्किट, और जिनके प्राइस तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको खुद ही याद होगा जानते होंगे कि 1 लीटर मिल्क क्या होता है, क्योंकि बच्चे ये कॉन्स्टेंटली अपने आसपास देखते हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट मैथ्स इज नॉट समथिंग कि जो हमारे वो बुक्स के अंदर ही है, हमारे जिंदगी में इसका कोई मायने नहीं रखता। सो इन द एंड, most what I would like to say is storytelling can be used in math curriculum, particularly in social, emotional and value education. Maths तो है ही, बिकॉज ये तो हम सारे इधर मैथ्स के बाद डिस्कस करें, पर इसके साथ साथ भी आप जानते हैं, मैं ना इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाह रही थी, फिर मुझे लगा पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं, बिकॉज एज सच वी नो दैट वी आर नॉट सपोज टू एनकरेज बेगिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पैसे बच गए, तो मार्केट का सीन मैं सोच रही थी, आप सोचिए मार्केट में जाते हैं तो आपको दिखते हैं ना कभी कोई बूढ़े लोग या कोई वो आके भीख मांगते हैं या समथिंग। तो एक बार मैंने सोचा कि बाकी एक स्नेहा सॉ an old lady asking for money, तो उसके पास जितना बचा था उसने उनको दे दिया, एंड देन आस्क्ड कि तो लेडी को उसने कितना दिया। फिर मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया कि सोच के कि पता नहीं कैसा लगेगा सबको, बट ऐसे ही सोच कि आप इसमें सोशल इमोशनल ऐसा डाल सकते हैं कुछ भी। या वो 3.5 रुपए से उसने सोचा कि मैं मेरे भाई की मदर के लिए, मेरे मदर इतने कुछ ले आती है, या मेरे ग्रैंड मदर के लिए मैं टॉफी लेके जाती हूँ, एक टॉफी का दाम 50 पैसे है, तो 3.5 रुपए में उसने कितने टॉफी खरीदे। आपका डिविजन का एक क्वेश्चन हो गया, और इसमें आपने एक सोशल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू भी ऐड कर दिया। ठीक है। सो इट ऑल्सो लेंड्स itself to creating solving rich math tasks। ये चीज आप थोड़े से जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, लाइक ये तो आप 2-3 के साथ कर सकते हैं। आप जैसे 4-5 से कहानी सुनना किसे नहीं पसंद है, देखिए हम लोग भी इधर तो वही कर रहे हैं। एंड what you can do to ask them to make छोटे स्टोरीज, ऐसे 4-5, एक पैराग्राफ का स्टोरी या कोई सिचुएशन जिसमें वो ऐसे डालेंगे, आप सीन दे दीजिए, बाजार का सीन। हाँ, जैसे ये आपने क्वेश्चन दिखाया, करवाया, उसके बाद आप एक बाजार का सीन दे दीजिए, इस पे तुम लोग क्वेश्चन बनाओ, ग्रुप बना दीजिए, 4 या 5 बच्चों का ग्रुप, उनको करवाइए। या आप बोल दीजिए पिकनिक सीन, हाँ, एक पिकनिक वाला फोटो लगा दीजिए, दिखा दीजिए, और बोल दीजिए कि ऐसे 10 बच्चे या 5 बच्चे, या उनको ठीक करने दीजिए, इतने बच्चे जा रहे हैं, क्या क्या खाना लेंगे, पैसे इतने दाम के हैं, कितना एक एक का खर्च होगा। लेट देम गिव इट एज अ प्रोजेक्ट, गिव देम सम टाइम, गिव इट एज एन एक्टिविटी, उनको सोचने दीजिए, उनको अपने क्वेश्चन बनाने दीजिए, और फिर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में बांट के आप देखिए कि कैसे, आप देखिए उनको सिर्फ मैथ्स नहीं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, कितना कुछ एक ही इससे बनेगा। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ रिच टास्क, जिसमें बढ़ने का बहुत चांस रहता है। It is important to utilize and foster 21st century learning skills in the modern day learner. Students are bombarded daily with information, and it is important to be able to sift through new ideas and connect it to prior knowledge. उनको comprehension जान बहुत जरूरी है। हम लोगों को 10 चीजें, 10 आप देख लीजिए, जैसे खबर, 10 खबर 10 दिन आ रहे हैं, कुछ सच है, कुछ झूठ है, कुछ मिक्स है। अगर हम इनको कॉम्प्रिहेंड करके उससे ना ही छांटे नहीं, सिफ्ट नहीं करें, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या सही क्या गलत है। और वही चीज हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाए, बिकॉज आफ्टर ऑल मैथ्स इज वेयर बाय सब्जेक्ट इट इज ऑल अबाउट रीजन, लॉजिक एंड ट्रूथ।
So this skill set incorporates both critical thinking and collaboration. Collaboration is necessary skill that applies to all stakeholders in education. ये जो हम इस वक्त कर रहे हैं कोलैबोरेट ही कर रहे हैं. ऑल राइट, एक साथ मिलके सब जगह से आके मिलके हम एक दूसरे से सीख रहे हैं. सो दैट इज वाई ये कोलैबोरेट, अकेले अकेले कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता है. हम माने ना माने, हर आदमी या औरत के पीछे, सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, कोलीग्स, बहुत कुछ. सो कोलैबोरेशन, जो स्टूडेंट कोलैबोरेट नहीं करना सीखे जिंदगी में, फिर सिर्फ मैथ सीख के क्या होगा. एंड आई एम सेइंग दिस एज अ मैथ्स टीचर. सो अल्टीमेटली आपको याद है मैंने आपको बोला था ना कि मेकिंग स्टूडेंट्स excited about learning is something that we should be, trying to achieve. So I will end with this. I'll first, where do you start कि आप ये कैसे कर सकते हैं? Initially this may look very difficult. तो आप कुछ ये चीजें आप सोच सकते हैं ऐसे. Learn effective storytelling technique, आपका communication. डिटर्मिन व्हाट योर स्टूडेंट्स नीड, मतलब आप किस मल्टीप्लिकेशन में करवाना चाहते हैं, परसेंटेज में करवाना चाहते हैं, डिवीजन का कुछ करवाना चाहते हैं, ओवरऑल चारों ऑपरेशंस दिखाना चाहते हैं, या हो सकता है कि बच्चों को आप कोई प्रोजेक्ट, ऐसे काम, उनकी क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं. नीड का एक, द स्टोरी नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट डज नॉट, ये नहीं कि आप एक ऐसा स्टोरी ले ले वो इतना पेचे. आप सोचिए, आप अगर पूरा महाभारत लेके बैठ जाएंगे फिर तो मुश्किल है. आपको छोटे 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 लेने हैं, जैसे मैंने कहा वो पंचतंत्र वाले या उससे छोटे वाले, एसॉप फेबल्स वाले, ऐसे करके कि ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ, और छोटे बच्चों के लिए तो और भी कम, मे बी 3-4 लाइन्स वाले, ऐसे कुछ. आप बड़े कहानियों से छोटा एक पीस निकाल लीजिए, उसको जैसे मैंने स्नो वाइट का वो जगह यूज किया था ऐसे. एंड स्पेशली अगर आपके टेक्स्ट बुक में, मान लीजिए आपके हिंदी टेक्स्ट बुक में कोई कहानी है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में उसी क्लास का, उससे जोड़ के अगर करवाए फिर तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप फिर आपका ये मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी बन जाएगा. स्टोरी टेलिंग टेक्निक थोड़ा सा, वॉइस वगैरह वो तो करते, वो टीचर्स को आई थिंक उतना जरूरत नहीं पड़ता. हम वैसे ही द मोमेंट वी एंटर अ क्लास वी बिकम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन ये अपने आप ही बन जाता है. एंड सबसे बड़ी बात, गिव फीडबैक. उन्होंने कैसा किया, और स्पेशली अगर उन्होंने स्टोरी बनाया है, जैसा भी बनाया है, जरूर उनको फीडबैक दीजिए, बिकॉज अप्रिसिएशन इज द बेस्ट मोटिवेशन आई थिंक. सो अल्टीमेटली in the end, this is what I would like to say: be the teacher who makes kids excited to come to school. आप वो टीचर बनिए कि इनका क्लास करने में बहुत मजा आएगा. So that is the thing that I would, like to end with. And honestly, very sincerely, if you can make some stories and you can share it with us, my email ID is given. We'd like to share it with, with your name and a thing कि इस स्कूल से इन जने ने ये बना के उनकी स्टोरी है, या आपने किसी कोई स्टोरी पे आधारित आपने ये क्वेश्चन बनाया है. दैट वुड बी अ वंडरफुल थिंग. My email ID is there, and I think if possible, you can even send it to Shubhashree ma'am, who can forward it. But then we can, use these for aapke ye sahodaya isme. So thank you all very much. I hope, I know there was some problem with the chat thing. Uh, ये मुझे सोचना पड़ेगा कि कैसे करूं, ये ऐसे ही हो रहा है आजकल. So Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful session, ma'am. thank you all, and all the best to all of you. Stay happy and healthy. Goodbye. Thank you all so much. Thank you.